सो मैम वी वुड लाइक टू नो जो आपने जो कंटेंट का जो जर्नी है तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया था? The other day I was cycling to go to my gym and cycle करते करते I saw these two little children, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के होंगे, मतलब हाइट में छोटे थे, and they were walking, laughing, having an ice cream, और ऑटोमेटिकली एक आइडिया आ गया, hey, you know what, I can write on this. आपके जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो क्या था? I won't say is life changing, but is mindset changing. Is that once the day is over, it's over. I don't go back. But ऐसा क्यों ज़रूरी है कि वो already हो चुका हो, शायद वो आने वाला हो, वाह वो भी हो सकता है ना. It's कि just matter life, once. my life changes every day. What like techniques do you use to ensure your content is engaging and like relevant for your audience? 3 reasons. One is why. Say Vasudev, if I'm talking to you, why do you want to start a podcast? एक बार you have answered that why you want to do something, it makes it easier to narrow down and say what is it that you can talk about even in your sleep. So मैं बोलती हूँ अगर कुछ ऐसा टॉपिक होगा कि आपको कोई अगर एक माइक दे दे या आप किसी के साथ बैठे हो फ्रेंड्स के साथ, आप नॉन स्टॉप उस विषय पे बात कर सकते हो, उस विषय को अपना निश बनाओ, however different it is, whether it's fitness, it's health, it's beauty, it's tech. Like 60% of our audience या 60% of our like Gen Z generation जो है they want to start their content journey this kind of thing. तो उसके लिए confidence जो है वो बहुत ही एक बड़ा जो रोल है वो मैटर करते हैं. So I would like to know how to boost like confidence. But I always say पढ़ के पहले बोलो. Supposing you don't know what to say, pick up some content piece, pick up a book, but try and say those 10 lines a day, looking at the mirror without stumbling. धीरे धीरे बढ़ता है confidence. How you are using AI and enhance your workflow, this kind of things. I will only use AI if I'm stuck with say an idea and I need to elaborate on it. Then I will go to AI and say, hey, help me out, quickly do this fast. But जब मैं लिखती हूँ ना, I like to write myself because AI में इमोशन नहीं है. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को नए एक वीडियो पर. और आज हम लोगों के साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट और उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अमेजिंग है. इनफैक्ट आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर कंटेंट राइटिंग जर्नी तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि शी नॉट ओनली नो हाउ टू राइट ए कंटेंट, ऑल्सो नोन कि वेल डिफाइंड तरीके से एक कंटेंट जो होता है वो कैसे किया जाता है. एंड उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है. शी राइटिंग ऑन लाइक पेरेंटिंग, लाइक वेलनेस, जियोपॉलिटिक्स एंड फाइनेंस एंड लाइक लंडन स्टॉक मार्केट और भी बहुत कुछ. तो हाँ, आज के इस वीडियो पे हम स्वागत करते हैं पूजा मेहरा मैम को, जो उनका पर्सपेक्टिव से आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही इन्हेंस होने वाला है. सो थैंक यू पूजा मैम to joining with us, and I'm super excited to having you on my podcast. Thank you, Vasudev. Thank you so much for having me on your awesome show. I'm really, really excited also to be here. And I'm not Pooja Mehra, just a little check, I'm Pooja Marwa. Marwa, yeah, sorry, yeah. I'm so No, sorry. it's okay. It's fine. Not a problem. Okay, मैम. So we would like to know कि आपके जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया. लाइक सबके अपने जो जर्नी होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. सो आई वुड लाइक टू नो आपकी जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया. Basically, I was a stay-at-home mom. मैं 20 years तक तो बिल्कुल काम ही नहीं किया. काम in the sense I did a lot of work because I feel stay-at-home moms do everything. They are like, no, I will not say superwoman, but they are very, very strong women who kind of give up or kind of spend a lot of their time raising their children. तो वो मैंने किया था out of choice and I really enjoyed it because today when I look back मेरे को लगता है कि I had the best of everything. I literally saw my children break their first teeth, cry their first tear, take that first step when they walked. I don't regret anything. I don't regret not working. I was just in that moment and I really, really enjoyed it. So जब मेरी बड़ी वाली बेटी कॉलेज गई, that's the time that I said, okay, now I want to do something for me. And I don't think that it's ever too late. I always say that the best time to start is now. Only thing is that you have to be willing to start, na? So I started about 3-4 years ago writing. My one book is out. 2 are coming out end of this year, beginning next. And जब तक वो books सब बाहर आएंगे, publishing takes a little while. I started with content on LinkedIn and I'm branding a lot of Fortune 500 company leaders,
लॉट ऑफ ग्लोबल लीडर्स, इंडियन पॉलिटिशियंस. तो बहुत मज़ा आ रहा है. घर से काम करती हूँ, अपने टाइम पे काम करती हूँ. सो जब मुझे कोई बोलता है कि रिमोट वर्क क्या होता है, फुल टाइम ऑफिस में ये वो, आई फील इन अ वे कोरोना हैपेंड, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट उससे भी कुछ सीखने को मिला. और क्या सीखने को मिला, ये कि हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं. ओनली वन थिंग दैट यू शुड हैव इज़ द विल टू डू इट. एंड आई फील कि रिमोट वर्क, आई वर्क अ फुल टाइम. 10 बजे बैठती हूँ काम करने, 6 सवा 6 तक उठती हूँ. एंड पूरा दिन काम करके आई फील लाइक सेटिस्फाइड दैट आई एम सिटिंग इन माई हाउस, आई एम डूइंग taking care of the home, taking care of my daughter, doing my work, doing everything. So I feel complete and fulfilled. वाओ अमेजिंग. सो मैम वी वुड लाइक टू नो जो आपने जो कंटेंट का जो जर्नी है तो वो आपने कैसे स्टार्ट किया, लाइक हाउ डू यू फाइंड योर इंस्पिरेशन लाइक फॉर योर कंटेंट आइडियाज? Every day, everything around me, you inspire me, Vasudev. I can write a post on you in like 5 minutes. If I'm walking out, I see, bhutta wala sadak mein barish ho rahi hai, bhutta bech raha hai, I can write something on that. So I take, how do you sell say corn in the rains? You're not selling the corn, you're selling that emotion कि बारिश हो रही है, आप छाता में अपने फ्रेंड या लव के साथ खड़े हो. सो इट्स दैट इमोशन दैट यू आर सेलिंग. सो ऑटोमेटिकली माई ब्रेन, आई गेस व्हेन यू राइट कंटेंट फॉर सो लॉन्ग ना, सब जगह आपको इंस्पिरेशन मिलती है. द अदर डे आई वाज साइकिलिंग टू गो टू माई जिम, एंड साइकिल करते करते आई सॉ दीज 2 लिटिल चिल्ड्रन, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के होंगे, मतलब हाइट में छोटे थे. एंड दे वर वॉकिंग, लाफिंग, हैविंग एन आइसक्रीम. और ऑटोमेटिकली एक आइडिया आ गया, ये व्हाट, आई कैन राइट ऑन दिस. सो आई टेक everyday instances to write my content, because मुझे लगता है कि जब आप content बनाते हो, it has to reflect who you are as a person. मेरे को copy paste content just doesn't do it for me. Yes, AI, हम बोलते हैं कि AI will take over your job. ऐसा कुछ नहीं है. If you know how to master AI, it will help you in your job, it will help you in your productivity. That's what I think AI does. एब्सोल्युटली. सो मैम आई वुड लाइक टू नो लाइक कंटेंट जो होते हैं वो एंगेजिंग करने के लिए लाइक वो वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है. सो व्हाट लाइक टेक्निक्स डू यू यूज टू इंश्योर योर कंटेंट इज एंगेजिंग एंड लाइक वैल्यूएबल फॉर योर ऑडियंस? Okay, so before you start your content journey, I always say कि keep in mind 3 reasons. One is why. Why do you want to make that content? Why do you want to write about, example, fitness? Why do you say, Vasudev, if I'm talking to you, why do you want to start a podcast? एक बार you have answered that why you want to do something, it makes it easier to narrow down and say what is it that you can talk about even in your sleep. So मैं बोलती हूँ, अगर कुछ ऐसा टॉपिक होगा कि आपको कोई अगर एक माइक दे दे, या आप किसी के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ, आप नॉन स्टॉप उस विषय पे बात कर सकते हो. उस विषय को अपना नीश बनाओ, हाउ एवर डिफरेंट इट इज़, वेदर इट्स फिटनेस, इट्स हेल्थ, इट्स ब्यूटी, इट्स टेक, इट्स कार्स, इट्स कंटेंट, इट्स राइटिंग, इट्स AI, जो भी है, यू कैन टेक एनीथिंग. एंड बट यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, यू हैव टू नॉट गेट बोर्ड ऑफ इट टू स्टार्ट. एक बार आपने एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बना दिया उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उसके बाद आपको जितने मर्जी ऐड करने हैं आप ऐड करते जाओ, बिकॉज वंस यू मेड अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ, आप कुछ भी बात करोगे, पीपल विल कम टू यू. एब्सोल्युटली. तो वो पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं कि आपके जो पैशन है या आपके किस चीज़ में जो है वो मज़ा आता है करने में, तो उस फील्ड जो है वो आप फोकस कर सकते हो, राइट? वाह. तो यही मैं एडवाइस दूंगी, जो आपके जैसे जो आपके ऑडियंस, आपके व्यूअर्स हैं, अगर कोई अपना कंटेंट राइटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों. एक बार आपका क्यों आंसर हो गया, उसके बाद आप मेरे को बताओ आप किसके बारे में बात कर सकते हो. आप सॉक्स के बारे में बात कर सकते हो आप, बट नॉन स्टॉप 5 घंटे बैठ के शीशे के सामने बैठो, बात करो, टिल यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से. एक चीज़ को बेचने के लिए 100 तरीके क्या 1000 तरीके होते हैं, बट यू हैव टू बी एबल टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक लाइक दैट. वाह. तो लाइक उसके लिए मुझे जो लगता है वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. सो लाइक मैं भी अभी जो आपने स्टेज पे, मुझे लगता है मेरी कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ है, जो लाइक ऑब्स्टिकल जो है वो मैंने फेस करके वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हुआ है. सो लाइक बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइक 60% ऑफ आवर ऑडियंस या 60% ऑफ आवर लाइक जेन जी जनरेशन जो है वो कंटेंट क्रिएटर या कुछ भी ऐसे रिलेटेड नीश पे वो है.
एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर कंटेंट जर्नी दिस काइंड ऑफ थिंग, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही एक बड़ा जो रोल है वो मैटर करते हैं. सो आई वुड लाइक टू नो हाउ टू boost like confidence, and what's your technique, like how you started your confidence, this kind of thing? Okay, so lots of people come to me for this. ये it's a very good question. Thank you for asking. Because ये करने के लिए भी not everybody can stand कैमरा के सामने. अगर अपना भी फ़ोन हो, not everybody can do it. I understand. So सबसे first way जो मैं कहती हूँ बच्चों को स्पेशली या Gen Z या millennials को कि अपने घर में शीशा है ना, मिरर होता है सबके घर में, आप उस मिरर के सामने खड़े होइए, प्रिटेंड दैट यू ओन द वर्ल्ड एंड जस्ट टॉक अबाउट समथिंग. जब आप बात करने लगोगे ना अपने आप को देख के उस शीशे में, आपको धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा. आधा मिनट बात करो, 1 मिनट बात करो, स्टार्ट तो करो. बट आई ऑलवेज से पढ़ के पहले बोलो. सपोजिंग यू डोंट नो व्हाट टू से, pick up some content piece, pick up a book, but try and say those 10 lines a day looking at the mirror without stammering. धीरे धीरे बढ़ता है कॉन्फिडेंस. आप ऐसे लोगों को मिलो जिसके साथ आप सराउंड करते हो अपने आप को, उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है. लेकिन सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से यू हैव टू केयर एंड लव योर सेल्फ इनफ फर्स्ट. क्योंकि अगर आप अपने आप को लव एंड रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे मानते हो कि कोई और करेगा? सो जब आपके अंदर लव एंड रिस्पेक्ट है कि ओके मुझे ये चीज़ करना है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, अब आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. कैसे करूँ? ठीक है, शीशा के सामने खड़े होते हैं, लेट मी ट्राई करते करते आप एक फ्रेंड के साथ बोलो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, बी माई ऑडियंस, लिसन टू मी. एंड ऐसे करके धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. नो रॉकेट साइंस. लाइक मुझे जो लगता है यहाँ पे प्रैक्टिस जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सो यू शुड बी डूइंग लाइक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और जो है आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, दिस काइंड ऑफ थिंग. तो वो क्रेक हो जाएगा. आई होप सो. यस ऑफ कोर्स होएगा, क्यों नहीं होगा. वाओ. तो लाइक अभी जो है सब लोग अपने लाइक इस जनरेशन पे पीपल दे वांट टू लाइक ए कंटेंट क्रिएटर. सो वो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि what are the essential components for a successful like content creator? वो strategy जो होता है वो क्या क्या like वो follow करना उनको चाहिए? What do you think? बेसिक जो गाइडलाइन है कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो ये है कि सबसे पहले आई एम नॉट वन टू फॉलो ट्रेंड. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे को सारे बोलते हैं ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाओ, ट्रेंडिंग ये करो, बट आपका कंटेंट है, आपको जो क्रिएट करना है आप वो करिए. बट हाउ यू वांट टू क्रिएट, सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म को देखिए, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट. इंस्टाग्राम हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे, बहुत ज़्यादा विजुअल रील्स की तरफ जा रहा है. अगर आप ट्विटर पे रील्स और वो सब जाओगे नहीं चलेगा, या लिंक्डइन पे डालोगे नहीं चलेगा. सो यू हैव टू सी कौन से प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट से लिंक्डइन, राइट? हम लिंक्डइन के बारे में बात करेंगे तो आई विल फोकस ऑन माई हुक. सबसे पहले मेरा हुक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर वो फर्स्ट लाइन आपका स्ट्रॉन्ग है तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी, राइट? सो फर्स्ट लाइन को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, उसके बाद एक री हुक करिए कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पोस्ट था जो वायरल गया. द फर्स्ट लाइन आई हैड वाज साइज मैटर्स. बस साइज मैटर्स में जिसका जैसा दिमाग है वो वैसे ही सोचेगा, बट आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स बिकॉज आई रोट साइज मैटर्स एंड सेकेंड लाइन व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर्स दैट इज. सो ऑटोमेटिकली आपको 1 सेकेंड में पता चल गया कि मैं क्रिएटर्स के बारे में बात कर रही हूँ. और फिर क्या, फिर आप पढ़ते गए एंड टिल दी एंड. सो अगर आप स्टोरी फॉर्म में अपना कंटेंट बनाओगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग हाय मैं पूजा हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, आपको कंटेंट लिखना है 1 2 3 4 5 फॉलो करो, कंटेंट लिखो. एक तो कोई सीखेगा भी नहीं उससे, एंड दूसरा दे विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट. So if I was to, like when I teach content, how do you start your content journey, I take classes for that. So जब मैं सिखाती हूँ, the first thing I say is pretend that you are in that content piece. आप उसको एक स्टोरी बनाओ. जब आप छोटे थे आपकी नानी दादी मम्मी पापा आपको स्टोरीज बोलते थे ना, और वो स्टोरी सुनते सुनते your brain used to kind of calm down and you could go to sleep. आप इंस्पायर भी होते थे उन स्टोरी से. आज तक मुझे भी वही स्टोरीज याद है जो मैंने अपने बचपन में सुना था. सो जब आप एक कंटेंट पीस बनाओगे जिससे योर ऑडियंस कैन फील समथिंग, वेदर दे फील हैप्पीनेस, वेदर दे फील सैडनेस, वेदर दे फील
एंग्जाइटी और वेदर दे फील जॉय, कुछ एक इमोशन अंदर उनको फील होना चाहिए फॉर देम टू रेजोनेट विथ योर कंटेंट. अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो कि से लिंक्डइन पे कुछ अपना सर्विस बेचना चाह रहा हो, वाई आर यू डिफरेंट? इतने सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, आपसे मैं क्यों काम करूँ? वॉट मेक्स यू यू? सो अगर एक कोई स्टोरी है या कुछ आपके बारे में कुछ ऐसा चीज़ है जो बात करके लगे हे मुझे इनके साथ काम करना है, यू नो, बट एक स्टोरी फॉर्म में अगर आप कंटेंट लिखोगे, जैसे ही कुछ इमोशन, यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग एन इमोशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम थम्स अप को देखते हैं, आज हम मार्केट में जाएंगे, थम्स अप, मुझे क्यों थम्स अप पसंद है? मेरे को सारे बोलते हैं, मैं देहरादून में रहती हूँ, सारे बोलते हैं थम्स अप यू नो इज़ अ वेरी बॉम्बे ड्रिंक. आई सेड हाँ पता है, बट मेरे लिए वो थम्स अप नहीं है. आई यूज टू सी अक्षय कुमार, अजय देवगन जंपिंग, डूइंग दोज यू नो थ्रिलिंग सीन्स विद थम्स अप. वो सीन मुझे याद है क्योंकि एक टाइम था लाइफ में जब मैंने बंजी जंपिंग किया था इसी थम्स अप की वजह से, एंड दैट थम्स अप जस्ट स्टेड विद मी. 30-40 years later I still want thumbs up. मेरे को कोक पेप्सी नहीं चाहिए, स्प्राइट नहीं चाहिए. So that thumbs up gave me a story that I have remembered through my life, probably till the end. So like that, if your content is inspiring me or telling me something, and if I'm following you for that reason, I will be with you till the end ना. So content में वो चीज़ एक ज़रूरी. लाइक इमोशन जो होता है वो अगर वो इमोशन अगर वो आप टच कर पाते हो ऑडियंस के साथ तो वो ज़्यादातर तक लाइक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहता है. Right. Or I think like every platform have different type of audience. Like the younger adult on like in Instagram, Facebook like our parent generation, and LinkedIn like our like a very professional mindset people, and Twitter is like a pretty big companies and like CEOs and politicians. So different type of platform have like different type of taste, and you should be like serve your content that way. Yeah, you have to plan your content accordingly. You can't tell me that you're going to go on Instagram, on Twitter, and start posting visual hook reels. It's not going to work. It will never work because Twitter is a very different kind of platform. It's short form, it's quick, it's fast, it's very intellectual. So your content has to be like that. It has to instantly provide value in like 2 lines. अगर वो नहीं कर रहा है, आ रहा इधर उधर की बातें कर रही हो, तो it's not going to work. इसी तो लाइक उसके लिए मुझे लगता है जो कंटेंट आइडिया है उस पे आपका जो दम है वो होना चाहिए. अगर वो कंटेंट आइडिया अगर हुक हो जाए, लाइक थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हाँ लाइक साइज मैटर करता है या दिस काइंड ऑफ थिंग लाइक हुकिंग जो स्टेटमेंट होता है वो होता है. सो लाइक व्हेयर डू यू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर योर लाइक कंटेंट आइडियाज? So I read a lot. मुझे लिटरेचर से काफ़ी कुछ मिलता है सीखने को. आई ऑल्सो फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु आर इन माई पर्टिकुलर नीश ऑफ राइटिंग, लाइक पीपल हु गोस्ट राइट, पीपल हु राइट, पीपल हु सर्व क्लाइंट्स. तो उनसे व्हेन यू रीड, I will never say copy paste, but when you read their work, you get inspired to say, hey, I can also do this. You know, I can also write something similar, or I can use this template. आजकल बहुत सारे creators आपको templates देते हैं to start with. So अगर आप वो template को use करोगे, आपके लिए अपना start easy हो जाएगा. और हमेशा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप content रोज़ लिखते हो, तो आप रोज़ लिखने बैठोगे तो it will tire you out. आपको कैसे करना चाहिए कि एक दिन बैठो, जैसे सैटरडे संडे को बैठो, 3-4 दिन का साथ में बनाओ. एंड इट शुड नॉट बी टायरिंग, क्योंकि कभी कभी मैं लिंक्डइन 1 साल हो गया स्टार्ट करे हुए, लेकिन जो लोग मेरे साथ स्टार्ट करे हैं वो अब नहीं है कहीं पे भी, बिकॉज वो उस टाइम इतना ज़्यादा कर रहे थे कि ऑब्वियसली बर्नआउट तो हो ही गई ना. यू कैन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो सबका अपना स्पीड होता है, सबका अपना वजह होता है, सबका अपना वाई होता है. यू हैव टू मेक कॉन्टेंट बेस्ड ऑन दैट. Inspiration take from creators. Don't ever copy paste. That's really wrong to copy paste. बहुत करते हैं ऑनलाइन, तो मैं इंस्टाग्राम पे तो इतने बोल सकती हूँ कि इतने सारे करते हैं, बट that's not the right thing ना. कॉपी पेस्ट में तो फिर आपका क्रिएटिविटी कहाँ है? बट इंस्पिरेशन के लिए लीजिए ना. इतना सारा कुछ मटेरियल है ऑनलाइन, सो व्हाई डोंट यू? चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को पूछो. परप्लेक्सिटी है, परप्लेक्सिटी, मिड जर्नी, इतने सारे हैं. राइट. सो जो इंस्पिरेशन होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, लाइक वहाँ से आपको आइडिया मिलते हैं. सो लाइक कैन यू शेयर अ टाइम व्हेन यू फाउंड इंस्पिरेशन लाइक इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, जहाँ से आपको लाइक वहाँ से आपने वो उम्मीद ही नहीं किया था कि हाँ यहाँ से इतना अच्छा एक आइडिया जो है मुझे मिल सकता है. वैसे कुछ हुआ था आपके साथ?
The biggest problem with me is that 90% of the time I'm on the road जब मुझे inspiration strike होता है, and I never have a paper pen because I like to write with paper pen. जैसे कोई idea आता है, oh let me quickly write it down. But most of the time I'm driving because I love driving. और जब मैं drive कर रही हूँ तो obviously आप लिख नहीं सकते, but मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कुछ दिमाग में आता है, I just put a voice note in my phone. I don't know how I'm going to use it. I don't know where I'm going to use it. But जब आप उस voice note को शाम के time, you know, like when I'm sleeping at night, I just kind of listen to what happened in the day. So this one thing I do in the day, at the end of the day, that really helps me. जब मैं रात को I'm ready to get into bed, you know, what I do is I spend 10 minutes to just shut my eyes and go through everything in the day. The good, the bad, the happy, the sad. जो भी हुआ उस दिन में. जो अच्छा नहीं हुआ उस दिन में, आई जस्ट लेट इट गो, आई डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट डे. जो अच्छा हुआ उस दिन में, आई ट्राई एंड सी क्या था, हाउ कैन आई यूज़ इट, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट. एंड इनहेरेंटली आई फाइंड दैट I laugh a lot, and because I laugh a lot, I always have some reason to kind of, you know, make up something or say something. And storyteller तो मैं हूँ ही, because मैं लिखती हूँ, किताबें लिखती हूँ. So I really like to, you know, reflect on that day and say I can use this. फिर website पे एक छोटा सा post-it है, वहाँ पे कुछ भी दिमाग में आएगा लिख के फिर I'll go to sleep. So next day when you get up, sit on your computer, it just comes. I think I'm blessed. It just comes to me. Wow. Easy. वाओ अमेजिंग. जो आपने जो अभी टच किया कि स्टोरी टेलिंग, एंड मुझे भी वही लगता है कि स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. अगर कोई बंदा या बंदी या इफ एनी काइंड ऑफ पर्सन इज एबल टू लाइक द क्रेकिंग द स्टोरी टेलिंग, देन वो लॉन्ग टर्म में जो विजन है उनका जो माइंडसेट होता है वो जा सकते. सो व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस like learning storytelling in a digital content, this like digital content area, this kind of thing I would like to know. You have to read to be able to write. That is the first thing. Read a lot of, depending on what your niche is, आप पढ़ो. For example, I am writing for global leaders. I'm writing for people who run countries and companies of the world. So I will kind of make my writing and my words to that level, right? अगर मुझे उनके लिए लिखना है, so obviously I have to read in that caliber. I have to understand. So one thing is that what happens in content writing, जब आप किसी और के लिए लिख रहे हो कि उनके वॉइस में लिखने में बहुत चैलेंजेस होते हैं. आज मैं कौन हूँ मुझे पता है. इट्स ईजी फॉर मी टू राइट. जैसे आप मेरे को बोलो 20 दिन का कंटेंट लिख लो, 4 घंटे में मैं 20 दिन क्या 40 दिन का कंटेंट लिख सकती हूँ खुद के लिए. किसी और के लिए लिखना है, फिर उनके वॉइस को यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू रीड, यू हैव टू सी वो कैसे बात करते थे पहले, आप क्या ले सकते हो उनके प्रोफाइल से, कैसे उनके लिए लिख सकते हो. अगर आप वो कर रहे हो, जो कि काफ़ी लोग लिंक्डइन पे करते हैं. अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए, कोई स्पेसिफिक नीश, सपोजिंग फिटनेस, अगर आप फिटनेस में क्रिएट कर रहे हो, आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन आएगा. आप फिटनेस क्रिएटर्स को देखो कैसे बनाते हैं वो अंकित भैया वाला जो है कहाँ से कहाँ चला गया, अपना खुद का वो गांव की वीडियोस बना के. सो इट्स नॉट आप कौन हो कहाँ से हो, इट्स जस्ट आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पोजीशन करना चाहते हो, वो चीज़ ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. सो जो टेक्निक होता है स्टोरी टेलिंग का, कुछ की पॉइंट होता है कि हाँ लाइक स्टार्टिंग और एंडिंग जो होता है वो आपको पहले से लाइक वो क्रीम की तरीके से आपको वो आपको सर्व आपको बेसिक अपने माइंड में आपको to learn storytelling you have to read stories, right? But you can't really learn how to write till you practice it. So मैं क्या बोलूँगी, आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करो, 10 लाइन लिखो, try and practice, but every day practice करो. like अगर आप 2 पोस्ट भी रोज़ लिख सकते हो खुद के लिए, don't publish it, but पोस्ट तो लिखो एटलीस्ट, because that's the only way you'll practice. और फिर आप देखोगे एक मंथ के एंड में कि जो आपने फर्स्ट डे उस मंथ का लिखा था और लास्ट डे उस मंथ का जो आपने पोस्ट लिखा है, you yourself will find the change. A lot of my students come and tell me that कि you know I wrote this on the first day and my God जब मैं अभी पढ़ती हूँ तो लगता है क्या लिखा था. ऐसे यही होता है क्योंकि जब आप लिखते जाओगे, वासुदेव अगर आप खाना बनाना चाहते हो फर्स्ट डे तो नहीं होता ना बिल्कुल, you're not a master chef. रोज़ वही चीज़ को ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ 2-3 weeks, a month, 2 months, 3 months, you will become perfect at it. But practice, that is what you need to do. And to practice, to learn storytelling, the first thing to do is to practice writing. Once you practice writing every day, automatically storytelling aa jayega. Okay. So like in this generation, like our current generation, like
lots of people facing the like mental health and like loneliness. तो वो जो इशू है वो लाइक लिटरली सब एज के जनरेशन जो लाइक स्पेशली जो है जेन जी जो है वो फेस कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू नो कि उससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या लाइक उनको पॉइंट जो है वो उनको करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इनसाइड, सबसे पहले यू शुड गो एंड आस्क फॉर हेल्प. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प. दैट्स वन थिंग आई विल 100% से. बहुत सारे टाइम मैं सुनती हूँ कि मैं किसको बोलूँ, लेकिन कोई तो होगा ऐसी लाइफ में. अगर कोई भी नहीं है तो आप प्रोफेशनल के पास जाइए. लेकिन you need, if you feel that you're not comfortable, you have to step out there and say I'm not comfortable. अगर आप अपने मॉम एंड डैड से नहीं बात कर सकते हो, कोई सिबलिंग होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई चाचा, कोई ताई, कोई मासी, कोई तो ऐसा होगा ना आपकी लाइफ में जिससे आप बात कर सकते हो. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग टू इग्नोर. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ एंड यू शुड नॉट इग्नोर इट. सो आई वुड लाइक टू नो आपके जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो क्या था. लाइक मेरा जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो था लाइक मैंने लाइक 1 or 2 years पहले मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो बुक था. आई थिंक लॉट्स ऑफ क्रिकेटर और लाइक फिल्म स्टार ऑल्सो प्रमोट दिस बुक एंड आई ऑल्सो लाइक हेयर द ऑडियो बुक एंड वो बहुत ही लंबा था. तो वो पढ़ने के बाद लाइक मेरा जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इन्हेंस हुआ. लाइक द पर्सपेक्टिव यू लुक लाइक द वर्ल्ड एंड यू सेल्फ ऑल्सो. तो वो मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत ही अमेजिंग है. लाइक कहीं से भी मैंने वो नहीं सुना था कि आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है. लाइक मेडिटेशन, योगा एंड कामनेस, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो आपकी लाइफ में जो था लाइक आई वुड लाइक टू नो कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जो आपको लगा कि हाँ ये इससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला एंड इट विल बी लाइक अमेजिंग इन माई लाइफ. बट ऐसा क्यों ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी हो चुका हो? शायद वो आने वाला हो. वाह. वो भी हो सकता है ना. It's a smarter ones. My life changes every day because I do something different every day. I have this one philosophy, na Vasudev, I'll share with you. I try and do one new thing every day in my life, something that I've never done before. Even if it is, जैसे मैं जिम रोज़ जाती हूँ, मैं बॉक्सिंग सीखती हूँ. सो अगर जिम में भी अगर मैं वेट्स पिकअप कर रही हूँ तो उस वेट में भी अगर आई एम पिकिंग अप से 5 kilos, I will try and pick up 7.5 one day, or I'll try a new exercise, or I'll do something. Yeah, something different I try and do every single day. So I feel that that changes my perspective. And another thing that I won't say is life changing, but is mindset changing, is that once the day is over, it's over. I don't go back. एंड आई लेट गो ऑफ व्हाट आई कांट कंट्रोल. अगर मेरे हाथ में है ही नहीं तो उसके बारे में स्ट्रेस करके क्या फ़ायदा, कुछ भी हो. बिकॉज मैं ये मानती हूँ, आई मीन आई हैव बीन टोल्ड ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली दैट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट जिस वक्त हम दुनिया में आते हैं वो तय है, जिस वक्त हमें दुनिया से जाना है वो भी तय है, लेकिन जो बीच में हम करते हैं वो बिल्कुल तय नहीं है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट, राइट. इतने सारे कोड्स होते हैं कि लाइफ इज़ ओनली 10% दैट हैपन्स टू यू, 90% इज़ हाउ यू रिएक्ट, विच इज़ व्हाट आई डू. कि इफ़ लाइफ इज़ ओनली 10% और वो 10% ऑलरेडी रिटन है हमारे लिए, जो भी अगर हम माने या ना माने, we don't know when we are going to go, we didn't know what exact day and time we would enter. But what I do know is I have today, whatever I do today will define what tomorrow is. फिर कल आएगा, कल जब आएगा, कल जो मैं करूँगी उससे परसों पे असर होगा. एंड आई टेक इट लाइक दैट, one day at a time. So for me, this philosophy of living one day at a time, that's my life changing moment अभी तक. वाओ, अमेजिंग. तो आप लाइक प्रेजेंट जो है उस पे जीना पसंद करते हो बजाय कि पास्ट या फ्यूचर जो होता है. एंड इसी पे लाइक पास्ट हो चुका है, पास्ट इज जस्ट अ स्टोरी. आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, अरे मेरा पास्ट में ये था, ये था, ये था, XYZ. फ्यूचर मुझे पता ही नहीं, मतलब आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स इट, बट आई डोंट नो. लाइक आई सेड, आई डोंट नो क्या होने वाला है, मुझे क्या पता. यू नो, इतने सारे हम स्टोरीज सुनते हैं. ओके, आज क्या हुआ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प इज गिविंग हिज लास्ट रिपब्लिकन रैली. उनको क्या पता था कि ही वॉज गोइंग टू गेट शॉट? नहीं पता था ना, बट ही गॉट शॉट. सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, बट यू टेक इट one day at a time, and that's what makes it fun.
वाओ! अमेज़िंग। तो उसके लिए लाइक आप प्रेज़ेंट जो टाइम है उस पे आपको रहना पड़ेगा एज़ उसके लिए लाइक ऐसी अमेज़िंग कंटेंट जो है वो आपको परसीव करना चाहिए। देन आपके जो नॉलेज है और आपकी जो एनहांस क्वालिटी है वो भी बहुत अमेज़िंग होगा। ऑब्वियसली सो मुझे जो लगता है अभी का जो कंटेंट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे मुझे लगता है कि देयर आर लाइक लेस फीमेल कंटेंट क्रिएटर। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट कि हाँ, वो यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहते कि जो कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट जो जर्नी है, व्हाट डू यू थिंक? अम, नहीं, आई थिंक आई डिसएग्री यहाँ पे। सारे जेंडर्स के लोग हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डोमिनेशन है। जो भी जेंडर्स लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं नहीं बोलूँगी मैन एंड वुमेन, बिकॉज अब वो मैन एंड वुमेन का नहीं है। काफ़ी सारे जेंडर्स लोग अपने आप को मानते हैं। तो जो भी जेंडर्स जिस वट एवर मेक्स यू हैप्पी, जो भी आप हो, आई सी पीपल ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑनलाइन एंड इट्स नाइस, बिकॉज इसी को तो हम डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, इसी को हम इंक्लूसिव सोसाइटी कहते हैं। सो इट्स अ नाइस थिंग, सब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। शायद हमने देखा नहीं, या हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उनसे रिएक्ट करने या मिलने के लिए। राइट। और नहीं मुझे जो लगता है कि अगर आप किसी कंटेंट या यूट्यूब पे अगर कोई भी कंटेंट आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली फीमेल जो है वो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, बट कंपेयर टू द मेल एंड फीमेल्स जो वो है वो थोड़ा सा लेस है। तो आई थिंक उनके पास अपॉर्चुनिटी है एंड दे आर नॉट ट्राइंग, ये भी हो सकता है। नहीं तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लेस है, लाइक 60। ऑल्सो दे कुड बी शाई, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बट माई चिल्ड्रन, इवन दो दे आर जेन जी, इतने एक्टिव नहीं हैं। माई फैमिली इज़ नॉट सो एक्टिव बिकॉज दे डोंट बिलीव इन इट, बट माई प्रोफेशन इज सोशल, सो मैं हूँ। सो पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि कोई इनहेरेंट रीज़न है कि आप क्यों नहीं हो भी सकते हैं। जैसे हमने वो पंजाब में एक वो आंटी हैं जो बर्फ़ी बनाना शुरू करी थी 90s में। सो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपको करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, नहीं करना है तो भी बहुत सारे तरीके हैं। ओके, तो ये टोटली जो मिथ है ये टोटली मिथ है। आई होप सो, आई मुझे थिंक सो, लगता है। आई थिंक सो, या। ओके, वाओ! सो आप जो है आप बहुत सारे इंडियन जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ आपने काम आप आपने किया है। सो आई वुड लाइक टू नो हाउ इज़ आवर पॉलिटिशियन लाइक इंडियन पॉलिटिशियन? व्हाट डू यू थिंक? I cannot answer this question. So let's leave it to their lovely people to work with and go to the next one. Yes, obviously, like I would like to know how their mindset, what they're going on. Like as a college student, we are only thinking about the job and this kind of thing. And you are a content creator, so you are like writing for them. So as a like politician, yeah, as a person, or what the behind of their knowledge, ki हाँ, we're to like work on our developing to our nation, this kind of thing. Like as a general term, कि हाँ क्या हो सकता है? सी 9 out of 10 क्लाइंट्स जो मेरे साथ काम करते हैं, जब वो मेरे पास आए थे उनको ये नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है। उन्हें सिर्फ इतना था कि बस मेरा आप कुछ करो कि मुझे लोग जाने और मुझे इस विषय के ऊपर बात करना है, बस। सो फॉर मी इन अ वे इट मेड इट ईजियर, बिकॉज देन मुझे पढ़ना था उनके बारे में, 2-4 इंटरव्यूज़ करती थी उनके साथ, एंड आई हैड इनफ कंटेंट टू काइंड ऑफ मेक माई ओन डेटा, एंड स्पेशली व्हेन आई डू लाइक स्पीचेस एंड थिंग्स लाइक दैट, ईजी हो जाता है। किसी का टोन ऑफ वॉइस समझो, उनके लिए लिखना फिर बहुत ईजी हो जाता है। बट अप अंटिल नाउ आई थिंक दे आर वेरी genuine people, the ones that I worked with at least. So no comments on that. It makes it easier अगर आपको पता ही नहीं कि एक्सक्यूज़ मी कि आपको कैसे आगे करना है, तो बिकॉज देन दैट्स माई जॉब राइट, टू टेल यू कि मैं ये कर रही हूँ आपके लिए, और ऐसे करके, बिकॉज आप जिस लेवल पर हो, इंडिया का यूथ आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे इंस्पायर होगा ना। एंड एंड ऑफ द डे आप हमारी यूथ को ग्लोबल सिटीजन्स बनाना चाह रही हो, सो वी आर ट्राइंग टू पोजिशन यू लाइक दैट, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। बट व्हाट आई लाइक इज दैट दे आर ओपन टू चेंज। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट ओपन टू चेंज एंड उनका माइंड सेट छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों के साथ मैंने काम करा है एंड कंटिन्यू टू काइंड ऑफ वर्क, दे वेरी प्रोग्रेसिव इन देयर थॉट प्रोसेस। ओके, सो आपका रिएक्शन कैसा था? लाइक जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्टिंग किया था तो मेरा जो रिएक्शन था वो बहुत ही लाइक वो था कि अच्छा चलो कुछ करते हैं, कुछ नया अमेजिंग जो है वो करते हैं। एंड बेसिकली मुझे वो करने में मज़ा आता था। एंड
फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो तब मैं ब्लॉगिंग दिस काइंड ऑफ थिंग आई वाज डूइंग। सो मेरे जो कुछ फ्रेंड थे तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो ये ट्राई करके देख सकते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ चलो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया एंड वो जर्नी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। बट जो फर्स्ट जो मुझे मिला था कि हाँ एक दोस्त के साथ वो मुझे कन्वर्सेशन या इंस्पिरेशन जो है वो वहाँ से मुझे मिला था। तो आपका जो यहाँ पे जब आपने एंट्री किया था तो आपका इंस्पिरेशन लाइक कैसे आपने डेवलप किया या कैसे लाइक यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला? आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द लोकल पेपर और उसे पढ़कर किसी ने मुझे फिर बुलाया. सो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड बिकॉज उससे पढ़कर जब आई वेंट टू मीट द जेंटलमैन, उसके बाद it was 1 2 3 4 5 things just fell in place. रेफरल्स के ऊपर ये काम होता है बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट. कल आपको कोई अपनी पर्सनल पूरी लाइफ की हिस्ट्री दे रहा है कंटेंट बनाने के लिए, सो बहुत सारा ट्रस्ट होता है बिटवीन मी एंड देम, दैट what you say stays with me, and that's very important for them to know. ओके, लाइक हाउ वाज योर रिएक्शन लाइक व्हेन यू हियर्ड कि हाँ मुझे इनके साथ काम करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे मिल रहा है? Just excited. I really get excited, and when I'm excited I'll go and have like 2 scoops of butterscotch ice cream. So there's lots of ice cream inside me because every time I get excited I go and have that. But मज़ा आता है. I mean initially बहुत लगता था, but अब I'm used to it. So but मैं ice cream अभी भी खाती हूँ. या बट हाँ वो आपको दिखते ही है एंड यू आर टोटली ग्लोइंग इन योर एक्चुअल नीश ऑल्सो जो आप करते हो, Thank तो you. वो तो अमेजिंग है Thank you. ऑब्वियसली। तो मुझे ये जानना है कि अभी की जो लाइक जनरेशन है वो टोटली री इन्वेंटिंग इन देयर लाइक ओन स्टफ। लाइक कोई अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं तो वो चाहते हैं कि हाँ मेरा जो कंटेंट राइटिंग है वो और भी ज़्यादा नरिश हो, कि बेटर से बेटर जो है वो मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। तो वो लाइक एवरी निश जो मुझे लगता है वो री इन्वेंटिंग पीपल दे वांट टू री इन्वेंटिंग इन देयर निश। सो आई वुड लाइक टू नो हाउ टू री इन्वेंटिंग in any kind of field, and especially in content writing. Learn about various apps because AI is the future in every field, whether you're designing, whether you're video editing, whether you're writing. आगे जाके टेक्नोलॉजी में भी मतलब टेक एंड इंजीनियरिंग में भी आएगा. सो अगर आप AI से अपने आप को अपस्किल करते रहोगे, यू विल कीप री इन्वेंटिंग बिकॉज AI इज़ अ कंप्यूटर. एंड ऑफ द डे आज हम बोलते हैं वी हैव चैट GPT. ओके, चैट GPT को अगर आप ठीक से प्रॉम्प्ट करोगे तभी वो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा. अगर आप एक सिंपल 1 लाइन में प्रॉम्प्ट कर दोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, विच इज़ अगेन अ क्लास ऑन इट्स ओन. So when I teach my students about how do you prompt chat GPT for a specific idea, chat GPT को अगर आप सीखोगे कैसे prompt करने, it will give you exactly what you want, and you have to not even go 5-6 times. If you know how to prompt it initially nicely, and the prompts are literally 2-3 पेज लॉन्ग के prompts होते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से prompt दोगे आपको जवाब भी वैसे ही मिलेगा. AI आपको कभी नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर किसी को AI यूज़ करना आता है 99 या 110% वो इंसान आपको रिप्लेस करेगा, इवन इफ ही हैज़ नो राइटिंग बैकग्राउंड. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज AI is your future for the children. It is going to be a very inherent part of their life. So learning to upskill with AI in whichever field you are, especially content, will only be an asset to you. So make use of it. Learn different types of AI. Microsoft Copilot भी आ गया. It's very very nice. I love using it. Makes my life so simple. So अगर आप if you learn how to navigate it, it will make your life simple and give you ideas for content. आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं. आप सीधा लिखेंगे, ठीक से प्रॉम्प्ट करेंगे, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे. Wow, so आपने अभी जो मेंशन किया कि you also using AI, so I would like to know like how you are using AI and enhance your workflow, this kind of thing. I will only use AIs if I'm stuck with say an idea and I need to elaborate on it. Then I will go to AI and say, hey, help me out, quickly do this fast. But जब मैं लिखती हूँ ना, I like to write myself because AI में इमोशन नहीं है, और वही सेम वर्ड्स, टेपेस्ट्री, रेल्म, वीव, एम्ब्रेस, इतने सारे कांस्टेंट वर्ड्स. अगर मेरे को कोई लिख के भी कोई AI का इतने सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, मुझे आई कैन टेल यू इंस्टेंटली ये AI, मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगी उनको. बिकॉज इफ़ इट्स एन AI मैसेज, अगर आपने इतना एफर्ट ही नहीं लगाया कि आप AI मैसेज लिखाओ,
से लिखवाओ, बट एटलीस्ट add your emotion in it, 2 lines, why you want to connect with me, tell me that, and I'll be happy to connect. But if I feel it's an AI written content, I will ignore and move on. मैं comment को answer भी नहीं करूँगी. Okay. So, I would like to know how do you look up to AI because it's rapidly changing in our generation. Because I learn every day, no? Every day I'll read about it. Something, 10-15 minutes, half an hour. कुछ इतना time नहीं लगता. खाली कुछ क्या नया हुआ. अगर आप, how do we learn to grow? Every day we learn ना. जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप बोलते थे ऐसे खड़े हो, वैसे बैठो, चलना सीखो, दौड़ना सीखो, सिखाते थे ना. तो अगर हम AI को भी वैसे ही अपनाएंगे, हम भी सीखेंगे रोज़. एंड AI इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. अगर आप उसको अपनी लाइफ बना दो तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अलेक्सा है आपके लिए, बत्ती पंखा सब कुछ ऑन ऑफ कर सकता है, आपको रिमाइंडर दे सकता है, आपको कहानी बोल सकता है, आपके लिए गाना गा सकता है. सो व्हाट, इट्स जस्ट इट्स अ लोनली वर्ल्ड. ऑफ कोर्स बहुत सारा लोनलीनेस. इंडिया में इतना नहीं है जितना वेस्ट में है, बट आई गेस टेक्नोलॉजी के साथ तो यू गिव एंड टेक, प्रोज एंड कॉन सब जगह होता है. हाँ, बट उसको यूज करने का जो तरीका है, you should be learned You have like to learn, yeah. like you also mentioned that prompt engineering वो बहुत ही जो है like future में बहुत ही वो काम में आएगा, and also present में भी बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, and जो like optimistical way से वो यूज कर रहे हैं उनको like वो रिजल्ट भी मिल रहा है. So I would like to know कि जो अभी AI है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. So आने वाले लाइक 5 to 6 years में व्हाट डू यू थिंक कि AI का जो स्टेज या पोजीशन है वो क्या होने वाला है? लाइक AI रिप्लेसेस द लाइक कंटेंट राइटिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग. लाइक ये बहुत ही एक लाइक कॉमन जो क्वेश्चन है वो होता है कि अगर AI आ गया फिर कंटेंट राइटिंग जो है उनका जो जॉब है या जो भी है वो बहुत खतरे में आ सकते हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन? इसीलिए मैं कहती हूँ अपस्किल, बिकॉज AI आपका जॉब कहीं नहीं लेके जा रहा. AI इज़ अ टूल, उसको आप टूल की तरह यूज़ करो, क्योंकि AI को भी यू नीड अ ह्यूमन टू रन द AI ना. आज चैट GPT हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर वो इंसान ही नहीं है जो प्रॉम्प्ट करेगा उसको, तो हाउ विल चैट गिव यू द आंसर? ऑटोमेटेड तो नहीं हो सकता आज. कल क्या होगा आई डोंट नो, बट देन जो चीज़ आएगा कल उसको कल देखेंगे ना. आज क्यों सोचो उसके बारे में? दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट लिव फॉर टुडे ना, बी इन द मोमेंट, लर्न टुडे. जो है कल जो आएगा वी लर्न अगेन. आज व्हेन आई वाज स्मॉल वी डिडंट इवन हैव गूगल. हम तो लाइब्रेरी जाके रिसर्च करते थे ABCD, लाइब्रेरीज में बैठ के इतना टाइम लगता था प्रोजेक्ट ICSE का बनाने. अब तो इतना ईजी हो गया है, गूगल पे बैठो आंसर मिल जाएगा, चैट पे जाओ फॉर्म कर लेगा. वन क्लिक पे मिल जाता. Yeah, so you just change with time, and every day then something new, something different. वाओ, अमेजिंग. सो आई वुड लाइक टू नो कि बहुत लोग जो होता है लाइक मैं जब कंटेंट बनाता हूँ, सो यहाँ पे बहुत लोग अपना जो ओपिनियन है या फीडबैक जो है तो वो शेयर करते हैं लाइक इन द कमेंट सेक्शन. तो कभी कभी कमेंट पढ़ के आप पॉजिटिव भी होते हो या कभी कभी आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा डाउन भी हो जाता है कमेंट पढ़ के. सो इट्स टोटली फीडबैक. सो हाउ यू टेक फीडबैक लाइक वेल तरीके से आप कैसे लेते हो वो फीडबैक? एवरीबडी हैज़ अ राइट टू ओपिनियन, राइट. खाली ये है कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो तो मत बोलो ना. बोलने की क्या ज़रूरत है? वाई हर्ट समबडी विथ योर वर्ड्स? ट्रोलिंग तो बहुत होता है ऑनलाइन, एंड मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बट वाई इतना छोटा. अगर आपने जैसे कभी कभी मैं जो ये नासा पिक्चर्स भेजता है ना अर्थ का फ्रॉम स्पेस, इफ़ यू सी दैट इट मेक्स यू फील कि यू आर सो स्मॉल. एक छोटा सा प्लैनेट इन दिस होल एक्सपैंस, उस प्लैनेट के अंदर एक छोटा सा देश जिसमें लाखों करोड़ों लोग, उसमें आप हो कौन? एक डॉट से भी कम इंसान. तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो किसी के लिए तो बुरा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, मत कुछ बोलो. बट होते हैं लोग, they take pride in doing that, so okay fine, I just ignore and move on. I don't even get into conversation. of course मेरे साथ भी हुआ है, क्यों नहीं होगा? जो भी ऑनलाइन दिखेगा कुछ ना कुछ तो होएगा ही, but I just choose to just ignore and move on. वाओ, आई रियली लव योर पर्सपेक्टिव कि हाँ आपने जो वो इनहेंस तरीके से जो आपने देखा है कि हाँ हम इफ़ यू लाइक फ्लाइंग ऑन द स्काई, लाइक जो फ्लाइट में अगर हम जाते तो वो विंडो सीट से अगर हम देखते तो कितना छोटा छोटा घर लगते, तो लगते कि हाँ लाइक इतना छोटा अगर होगा तो लाइक कौन ही जानते हैं हम लोग तो को. और लाइक नेगेटिविटी जो है वो अगर
खुद के ऊपर अगर रखेंगे तो वो हम लाइक खुद को ही बहुत हार्ड करेगा। सो हाँ, लाइक वो आप कैसे लेते हो वो टोटली आपके ऊपर है, बट ज़्यादातर इग्नोर करने दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो, राइट। ओके, सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने जो लाइक आपका जो बुक है उसमें उसके बारे में आपने शेयर किया था, तो आपके जो अपकमिंग बुक आने वाला है लाइक उसमें क्या क्या होगा। सो टेल अस अबाउट अबाउट द योर अपकमिंग बुक, कि क्या क्या होने वाला है इस बुक, क्या है। Yes, I'm very, very, very excited about this book. It's called मैं मेकिंग यंग अडल्टिंग फन, बिकॉज इतना ज्ञान है ना इंटरनेट पे कि हमें सब लोग सब कुछ सिखाना चाहते हैं। सो मैं भी मतलब मुझे ज्ञान नहीं पसंद, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि बच्चों को जानना चाहिए, जो कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं अडल्ट से। लाइक एज अ मदर मैं अपनी डॉटर को क्यों बोलती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर मैं उसे बैठ के बोलूँगी कि बेटा इट्स नॉट गुड, अपना कंफर्ट जोन, जैसे कुएं के मेंढक होते हैं, आप बाहर जाओ, बाहर नहीं जाओगे तो उधर ही पड़े रहोगे, ये वो 2 मिनट क्या आधा मिनट भी नहीं बैठेगी वो मेरे साथ, एंड शी विल गो। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं उसी की लेवल के स्टोरी में बना के उसको बोलूँ कि क्यों अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना चाहिए, मैंने क्या किया अपने लाइफ में टू डू दैट। एक टाइम था जब मैं कॉलेज में थी एंड माई मदर एंड मी वी हैड गॉन टू न्यूजीलैंड एंड एडवेंचर का बहुत शौक था। मुझे था कि मुझे बंजी जंपिंग करना है। बंजी जंपिंग करने के लिए हम गए, मुझे लगा हाँ पूरा हमें बांध बूंद के फिर बोलेंगे ठीक है जंप फ्रॉम द ब्रिज। उन्होंने क्या किया, सिर्फ पैर को बांधा, पैर मतलब ओनली एंकल्स, एंड दे सेड गो टू द एज एंड जंप। Oh gosh. मैं नहीं जंप कर सकती, इट्स टू स्कैरी। आई सेड नो नो आई विल डाई। हाँ, लेकिन यू हैव टू इमेजिन दिस वासुदेव, देयर इज दिस लिटिल ब्रिज, आप इस पॉइंट पे हो, नीचे रिवर है जहाँ पे सोना है, और उन्होंने कहा अगर आपने रिवर छू लिया और सोना आपको मिल गया, सोना आपका, दो तरफ माउंटेन, बस। oh तो मैंने shit. बोला कोई बात नहीं, आप मेरे को पुश करो। बोलते नहीं दिस इज नॉट अ बंजी पुश, इट्स अ बंजी जंप, आपको जंप करना पड़ेगा। ऐसे अपनी राइट सेन माइंड में तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं कूद सकती, मतलब आई फील लाइक अगर रस्सी टूट गया, मतलब रस्सी कैसे टूटेगा मैडम, जस्ट जंप। हाँ, बट इट वॉज सो फनी, यू नो, आई लिटरली आई थिंक जितने भी हमारे देवी देवता हो सबको बोल के गॉड आई लव माई लाइफ, आई एम ओनली 19 years old, आई रियली वॉन्ट टू लिव, मुझे शादी करना है, बच्चे करने, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ बोल के शट माई आईज एंड आई जस्ट जम्प्ड। दैट फॉर मी वॉज द फर्स्ट टाइम आई stepped outside my comfort zone of feeling wow. really scared, but I did it. wow, amazing. तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपने गैदर कैसे किया? मेरा होता तो मेरे को कहता नहीं भाई, मुझे इतना अभी अगर नहीं आप करना। सोचोगे तो आप कभी जंप ही नहीं कर सकते। सो बट द थिंग इज दैट यू हैव टू टेल योर माइंड वन चांस, कब मुझे ये मौका मिलेगा, मैं वापस इधर न्यूजीलैंड आऊँगी, इस पर्टिकुलर जगह पे इतना सुंदर जो भी। और जब मैंने ये कहानी अपने बच्चों को बोला जस्ट टू टीच देम क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एक ने बोला मुझे अरे तो आपने गोल्ड लिया कि नहीं, ऐसे गोल्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड। मुझे होश नहीं था कि मैं कूदूँ कि नहीं कूदूँ, कि आई कम बैक अलाइव और नॉट। एंड द अदर वन सेड ओह दैट इज़ वाई नाउ यू डोंट फील स्कैर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई सेड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस कहानी ख़त्म। अगर आप एक फ़न वे में स्टोरी के तौर पे कुछ बात करोगे यंग अडल्ट से, क्यों नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे ना 100%। और यही चीज़ मैं अपनी किताब में दिखाना चाहती हूँ हमारे इंडिया के यूथ को, स्पेशली जो टियर 2 टियर 3 सिटी हैं, इवन टियर ए फॉर दैट मैटर। हम बोल सकते हैं बॉम्बे दिल्ली में सबको सब कुछ पता है, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज एवरीथिंग, ये तो सब है, फिर भी क्यों है इतने सारे कोचेस, फिर भी क्यों है इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्यों है इतने सारे टीचर्स, ट्रेनर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, जब सबको सब कुछ पता ही है। कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में वासुदेव, यू जस्ट वांट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पता है लेकिन पढ़ के आपको लगता है अरे दिस इज समथिंग इवन आई वांट टू ट्राई, मुझे भी ट्राई करना, ये मेरे साथ भी तो हो सकता है। सो इस किताब में आई हैव शेयर्ड फेलियर, आई हैव शेयर्ड माई वल्नरेबल मोमेंट्स, आई हैव शेयर्ड टाइम्स जबकि मेरे साथ बहुत बुरा भी हुआ है। ओके, इट्स कैरी, मुझे पहले लगा था नहीं बोलना चाहिए, बट फिर वो मेरी स्टोरी है ना, मुझे शेयर करना है। अगर मैं अपनी स्टोरी से किसी और को इंस्पायर कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक इज़, कि अगर आप अपने आप को पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, सो एक छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं लाइफ में जो अगर हम अपने माइंड में रखें,
जैसे मैंने आपको कहा था कि जब मैं रात को सोने लगती हूँ, खाली डे का जो अच्छा था अपने साथ लेती हूँ, जो बुरा था आई जस्ट लेट इट गो, बट इट हेल्प्स। हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे से बात नहीं करते रोज़ रोज़, ये वो, ठीक है फाइन, या तो हम सल्क करें, ओहो उसके पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास इतने बिजी रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं, पता है कि फ़ोन तो अब उनकी लाइफ ही फ़ोन है, क्योंकि काम भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, सब हैं, एक एज होता है। सो इंस्टेड ऑफ सल्किंग अबाउट दैट, मैं क्या करती हूँ, एक मैसेज कर दूँगी या एक फ़ोटो भेज दूँगी कि क्या किया आज, ऑटोमेटिकली फ़ोन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अडल्ट बोलते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स में भी तो हो सकता है, क्योंकि हम डिफरेंट जनरेशन के हैं। अगर हम अपने आप को नहीं चेंज कर सकते हैं तो किस में प्रॉब्लम है, हमारे में है कि बच्चों में? दैट इज़ वेयर द डिवाइड इज। तो ये किताब मैं बोलूँगी कि बच्चों को तो 100% पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने के लिए। क्योंकि मैंने ये काफ़ी सुना है कि गिवन माई एज बट यू डोंट बिहेव लाइक योर एज। ओके, बट मुझे क्यों बिहेव करना है? मैं क्यों बोलूँ दुनिया को कि मैं 50 की हूँ, 40 की हूँ, 80 की हूँ? आपको जो सोचना है आप सोचो। अगर आपको लगता है मैं 20 की हूँ तो ठीक है 20 की हूँ, अगर आपको लगता है मैं 90 की हूँ तो 90 की हूँ। पर्सपेक्टिव मेरा नहीं है, आपका है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस बुक। वाह, लाइक आपका ये जो है स्टेटमेंट सुन के मुझे लाइक आई एम सुपर एक्साइटेड टू लाइक रीड दिस बुक। तो वो कब पब्लिश होगा? लाइक जो हम लोग के व्यूअर्स है उनको भी वो कह जाएगा कि कब वो सो फॉर ऑल ऑफ वासुदेव व्यूअर्स, जो भी वासुदेव के थ्रू आएगा, प्लीज़ माय चैनल इज़ पूजा पोदार मारवा इंस्टाग्राम पे। अगर आप फॉलो करोगे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, और अगर आप इनके चैनल से आओगे तो प्लीज़ बताइए, बिकॉज देन आई वुड लव टू गिव यू अ साइंड कॉपी ऑफ द बुक as gratitude for Vasudev for having me on his show, for the first 10 people that come up and say that they wanted. So जब भी बुक आएगा बाहर, if you already are on the page, you will get the live update. लेकिन आप बोलिएगा ज़रूर कि आप वासुदेव के शो से हो, so I can send you the book. obviously and thank you for like doing this kind of thing. तो like मैम आज के पॉडकास्ट आप कह सकते कि यहाँ पर ही हम एंड करते हैं, बट हाँ यहाँ पे एंड करने से पहले लाइक आई वुड लाइक टू नो कि जो ऑडियंस अभी तक यहाँ पे हम लोग के साथ देख रहे हैं, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस? लाइक वो बहुत ही लाइक आपके जो पर्सोना है वो सुन के लाइक दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट योर बुक एंड योर जर्नी ऑल्सो। सो लाइक मेरे जो व्यूअर्स है वो ज़्यादातर होता है लाइक कॉलेज स्टूडेंट 80 to 25, दिस इज आवर एज काइंड ऑफ थिंग। सो व्हाट वुड बी दिस काइंड ऑफ थिंग योर एडवाइस? For the audience that you have, that is exactly who the book is for. And if there is only one thing that I can say to you, it is that enjoy, just enjoy your youth. जो चीज़ मॉरली करेक्ट ना हो मत करो, सबको पता है मॉरली एंड फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड इमोशनली क्या अच्छा होता है आपके लिए, उस पर फोकस करो, बट enjoy your life, because one life, उतने ही ट्रिप्स हैं अराउंड दिस सन, सो मेक एवरी एंड ईच डे ऑफ योर लाइफ काउंट। एंड बिफोर यू स्लीप एट नाइट, इफ देयर समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल इन दैट डे, ऐसा नहीं है कि सब दिन अच्छा होगा, लेकिन हर दिन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ जो कि अच्छा हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप वासुदेव के शो पर आइए, उनका कोई भी पॉडकास्ट या एपिसोड को सुनिए, यू विल फाइंड समथिंग टू चीयर यू अप, बिकॉज आई फील दैट if you are happy enough from inside, the world is at your feet, and that's what you should be. Wow, wow, amazing, thank you मैम लाइक फॉर जॉइनिंग विद अस। एंड व्यूअर्स के लिए आज के दिन जो है वो बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, एंड मैम ऑल्सो मेड माई डे। लाइक इतना अच्छा कन्वर्सेशन जो है, लाइक इतना सिंप्लीफाई तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, और उनकी बुक से मुझे जो लगता है वो बहुत ही हेल्प होने वाला है। और हाँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम के जो सोशल मीडिया लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इनकी तरह इनके सोशल मीडिया भी बहुत अमेजिंग है, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हाँ, आज के वीडियो यहाँ तक ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इट अस टुडेज सेशन, एंड आई एम लाइक रियली अमेजिंग। लाइक पूजा मैम के साथ जो बातें हमने किया है वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखा कि हाँ, अपने लाइफ में जो है लाइक रिस्क जो है वो लेना सीखो, और लाइक कभी भी वो फियरनेस होता है वो अपने दिल में मत रखो कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, लेट्स ट्राई, let's do it a second chance, this kind of thing motivation. So thank you ma'am, like giving us this kind of like inspiration.
तो ये पॉडकास्ट जो है वो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये ऑब्वियसली एंडिंग जो पॉडकास्ट है वो नहीं है, बट हाँ हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका लाएंगे। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thanks a lot, Vasudev, for this. It was so much fun to be here. या एब्सोल्युटली, थैंक यू मैम।